Hi everybody, hi dear students. I hope you guys are doing good and preparing for your exams with full vigor and vitality. I welcome you all on this amazing platform of PW CLAT in Achievers and Pro Batch lecture number 3, where today we are looking forward to discussing basic dimensions of reading comprehension. I'm really sorry for cancelling the last session. We had an urgent meeting and I had to rush. But today we have rescheduled it and we are going to cover this important topic. If I am audible and visible to you people, please make sure you inform me ASAP. If you see any other discrepancy, जल्दी बताओ ताकि sort out करके आज का lecture kick start करें. Good afternoon. Hi everybody. Namaste. Radhe Radhe. Hello Bacha Party. स्टार्ट करें आज का सेशन. ओके My dear Bacha Party, I hope you people have seen shorts videos of Nyaya Divas. I want my achievers and pro students to work so hard that I see you all on our next felicitation ceremony where we celebrate your conviction, confidence and hard work. Okay? Promise me this today that you are going to work so hard that we'll meet in the felicitation ceremony next year. Okay? Start करते हैं हम. इससे पहले बच्चा पार्टी we have covered reading comprehension क्या होता है, क्या strategy होनी चाहिए, right? While discussing the strategy, I told you people to follow question first method. Right, question first method is a technique where you need to read the questions first. Okay, read the questions first and thereafter you will have to read the passage. After reading the passage, you need to tackle the questions again. And while tackling, you will have to use grounds of elimination. Thereafter, you need to practice more and more so that you can balance out accuracy with the time. Okay? This is clear everybody? अब यहाँ पर जो ये टॉपिक है, read the passage. यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं that you people have to make sure. जिसमें से एक चीज आती है जब आप पैसेज को रीड कर रही हैं. So what is important in it? क्या इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन पर आप लोगों को यहां पर ध्यान देना है, राइट? तो अब हम वही देखने वाले हैं बेटा. देखो यहां पर बेसिक डायमेंशंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. हमारे पास दो तरीके की डायमेंशंस है. एक होती है बेसिक डायमेंशंस और एक हमारे पास आती है एडवांस्ड डायमेंशंस. आज के सेशन में हम बेसिक डायमेंशंस कवर करेंगे और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. देखो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजंट अबाउट रीडिंग वर्ड्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप. किस चीज में रिलेशनशिप? जो आइडियाज हैं, ताकि आप उसके मीनिंग को इंटरप्रेट करके क्रिटिकली सोचकर क्वेश्चंस के आंसर कर सके, राइट? अब बच्चा पार्टी यहां पर आपके पास सबसे पहले क्या आता है? You need to focus on understanding the words as per the context. सबसे पहला हमारे पास आता है understanding vocabulary in context. पहला डायमेंशन क्या है? vocabulary in context. यहां पर you don't have to interpret the meaning of the word in a manner that you are referring to its dictionary meaning only. No, you will have to see the purpose that the word is serving in the passage. आपको समझना है कि उस शब्द का मतलब क्या है एज पर द होल कॉन्सेप्ट. आपको वो वर्ड आइसोलेटेड करके डिक्शनरी में मतलब देखकर नहीं समझना है. आपको समझना है कि ये वर्ड सेंटेंस में क्या कहना चाहता है, राइट? क्या सब्जेक्ट है, क्या टोन है, क्या मीनिंग है. दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. ओके, आई होप आई एम क्लियर सो फार. नाउ दिस एन एग्जाम्पल. I have an account at this bank. Now this bank is for sure a financial institution. Next,
We sat by the bank and enjoyed the serenity of nature through the woods. Now this bank over here is a river bank. Okay, the land beside a river. तो बच्चा पार्टी इंग्लिश में there are many words जिनका मतलब अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं. प्लीज फोकस ऑन दैट एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स. यश, आई एम टेलिंग यू प्लीज एंड आई एम एश्योरिंग यू दिस कि आप लोगों को वोकैबुलरी में कोई दिक्कत नहीं होगी. राइट, जस्ट फॉलो द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई हैव टोल्ड यू. सिंपल. देखो एक सेंटेंस है, आई गॉट perplexed when my brother tapped my shoulders while I was working in the kitchen. यहां पर you have to interpret the meaning of the word perplexed. Option A, option B, option C, option D. What is the sentence? I got perplexed when my brother tapped my shoulder while I was working in the kitchen. What is perplexed here? Surprised, confused, afraid या anxious? बच्चा पार्टी सेंटेंस को इमेजिन करो. आपने देखा होगा कई बार जब घर पर मम्मी ऐसे किचन में काम कर रही होती है, हम एकदम से पीछे से उनको ऐसे कंधे पर टच कर देते हैं. कुछ बच्चे तो ऐसे उनको डरा भी देते हैं कि भो ऐसे करके. राइट, तो बच्चा पार्टी या पहला रिएक्शन क्या होता है? You are shocked, you are surprised, right? कंफ्यूजन क्या होता है? जब आपके पास ऑप्शंस हो और आपको उन ऑप्शंस में से चूज करना है, दैट इज कंफ्यूजन. ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड. यहां पर परप्लेक्स्ड का क्या मतलब होगा? सरप्राइज्ड. ओके, सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट ऑप्शन नंबर ए एज एन आंसर. अब अगर आप लोग परप्लेक्स्ड का डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे, परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, एंजाइटी से भरा हुआ, सरप्राइजिंग. अब डिक्शनरी मीनिंग तो सरप्राइज को भी सपोर्ट करता है, कंफ्यूज को भी सपोर्ट करता है, एंशियस को भी सपोर्ट करता है. अगर आप डिक्शनरी मीनिंग से जाएंगे तो आप और कंफ्यूज होंगे. इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस के अंदर कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है. क्लैट के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है फाइंड अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग. अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया ना, इवन इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जैक्टली, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट. क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चल जाएगा वर्ड पॉजिटिव है, वर्ड नेगेटिव है, जो आपको एलिमिनेशन में हेल्प करेगा. राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप ओलेट्स देंगे वहां पर आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है इस वर्ड का मतलब क्या है, सेंटेंस में इस वर्ड का क्या मतलब है. अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है तो आप वहां पर इजीली उसको आंसर कर पाएंगे. इसीलिए बच्चा पार्टी, डू नॉट इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड आइसोलेटेडली, particularly focusing on the dictionary. Make sure you are referring to the context as well. If you haven't understood the context, then it is going to be very, very difficult. Another example of the same vocabulary in context. I need to take rest. I need to take rest to avoid any health issue. Next. Please solve the rest of the questions. Now, two sentences. Look at this word rest.
इसका मतलब क्या है? लेफ्ट ओवर, जो बच गया। और इस रेस्ट का मतलब क्या है? ध्यान रखना, सो जाना, थोड़ी देर शांति से बैठना, राइट? So over here you will see that a word in English can have multiple meanings. You just have to interpret it as per the context. I hope I am clear. Shashwat, what is the problem? Okay. बच्चा पार्टी, जिसको ये नहीं समझ में आया है, प्लीज टेल मी so that I can help it explain it to you. जिस बच्चे को यहां पर दिक्कत है, प्लीज टेल मी. Shashwat, please focus and try to understand the nitty-gritties so that you can understand the passage accordingly. देखो, मैंने बेटा आपको क्या बताया है, जब भी आप रीड करें ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर आपको फोकस करना है. सबसे पहली चीज क्या है? वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट. वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? जो भी वर्ड्स आपको पैसेज में दिए गए हैं, मेक श्योर आप उन वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट के थ्रू समझे, ना कि उसके डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग. अगर आप उसको डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करोगे तो नहीं हो पाएगा. समझ में आया? देखो, यहां पर आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. मैंने क्या बोला? वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि आपको एक शब्द का मतलब समझना है. कैसे? उसके कॉन्टेक्स्ट के थ्रू. सेंटेंस क्या कहना चाहता है, क्या टोन है, क्या सब्जेक्ट है. समझ में आया? अब यहां पर आपके पास मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए. देयर आर 3 एग्जाम्पल्स. पहला एग्जाम्पल है, आई हैव एन अकाउंट एट दिस बैंक. ये बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. वी सैट बाय द बैंक एंड एंजॉयड द ब्यूटी. दिस बैंक इज रिवर बैंक. So we have seen how a word can have different meanings as per the context. Second thing, next, I got perplexed when my brother tapped my shoulder while I was working in the kitchen. Perplexed का मतलब क्या है? अगर आप डिक्शनरी मीनिंग जाए तो सरप्राइज्ड भी है, शॉक्ड भी है, कंफ्यूज्ड भी है, एंशियस भी है. बट अगर आप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जाएंगे तो आप सोचो, अगर कोई ऐसे खड़ा है, आप एकदम से आके उसको ऐसे हाथ लगा देंगे, तो पहला रिएक्शन तो सरप्राइज का होगा, शॉकिंग का होगा. तो यहां पर वी आर गोइंग टू चूज सरप्राइज और शॉक्ड एज आवर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई नीड टू टेक रेस्ट. इसका मतलब क्या है? थोड़ी देर सो जाना, शांति से बैठना. एक, प्लीज सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. यहां पर रेस्ट का मतलब क्या है? लेफ्ट ओवर, राइट? तो बेटा, अ मीनिंग, a word can have multiple meanings. You just need to remember and see the context of the sentence so that you can understand it better. I hope I am clear. I hope this is clear to everybody. पीयूष, क्योंकि पहला रिएक्शन अफ्रेड नहीं होगा, पहला रिएक्शन शॉक होगा. क्लियर शाश्वत? ओके, बच्चा बाटी, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, मूविंग अहेड. आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है ना, जस्ट टेल मी, मैम नहीं है क्लियर, समझा दो. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ओके, प्लीज डू नॉट वरी. I have taken the responsibility of English and I'm going to make sure that every one of you perform well in the paper. आगे देखो अब. Next comes the main idea. Okay, what is the main idea? Main idea क्या है? Central message. ठीक है? और the point the author wants to communicate. या फिर वो point जो आपके author communicate करना चाहते हैं. It acts like an umbrella. ये एक अम्ब्रेला की तरह है जिसके अंदर सभी एग्जाम्पल, फैक्ट्स और रीजंस है. ठीक है, क्या बोला? मेन आइडिया क्या है? एक सेंट्रल मैसेज जो आपके ऑथर आप तक पहुंचाना चाहते हैं. ठीक है, ये एक अम्ब्रेला टर्म की तरह है जिसके अंदर एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स और रीजनिंग सब कुछ आ जाता है. एग्जाम्पल, सोशल मीडिया हैज ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड द वे पीपल कम्युनिकेट. It allows instant sharing of opinions and ideas, but also fuels misinformation and emotional polarization. क्या बोल रहे हैं? सोशल मीडिया ने चेंज कर दिया है, ऑल्टर कर दिया है जिस तरीके से लोग कम्युनिकेट करते हैं. इंस्टेंट शेयरिंग है ओपिनियंस की, आइडियाज की, बट इससे मिस इंफॉर्मेशन भी बढ़ती है और इमोशनल पोलराइजेशन भी होगी. राइट? आई होप ये क्लियर है, समझ में आया? दिस इज क्लियर टू एवरीबडी? समझ में आ गया है ये? अब देखो, यहां पर
आपके पास मेन आइडिया क्या है कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन को इंपैक्ट करता है पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। ये मेन आइडिया है, ठीक है, सेंट्रल मैसेज है ये। मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया इज द सेंट्रल मैसेज जो आपके ऑथर आप तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये एक अम्ब्रेला टर्म की तरह है जिसके अंदर सभी के सभी एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, कॉन्ट्रास्ट, फैक्ट सब के सब इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। यहां पर आपके पास एक पैसेज है, इस पैसेज के अंदर बोला गया है कि जो सोशल मीडिया है वो क्या करता है, जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं उसको ऑल्टर कर दिया है। इंस्टेंट शेयरिंग हो रही है लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन भी है और इमोशनल पोलराइजेशन भी है। पोलराइजेशन का मतलब होता है एक तरफ झुकाव हो जाना, ठीक है। यू नो द वर्ड रेज बेट। रेज बेट का मतलब क्या है? बेट क्या होता है? इफ यू पीपल नो, जैसे आपने चूहा देखा है, चूहे को उसके रैट ट्रैप में फंसाने के लिए जो वो एक रोटी का टुकड़ा रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड बेट, जिससे वो फंस जाए। तो रेज बेट इज एनीथिंग, एनी वीडियो, एनी मैसेज, एनी फोटो जिससे लोगों को गुस्सा आए, राइट। तो जब रेज बेट होता है, व्हेन रेज बेट इज सर्व टू masses, दे फॉल फॉर इट, और फिर एकदम से वो बैलेंस्ड ओपिनियन की जगह पोलराइजेशन हो जाता है, झुकाव हो जाता है एक साइड। दैट इज कॉल्ड इमोशनल पोलराइजेशन। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो यहां पर एक पैसेज है, ठीक है, यहां पर ध्यान दो बेटे, आपके पास एक पैसेज है। पैसेज क्या कह रहा है? सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ने क्या किया है? कम्युनिकेशन को इंपैक्ट किया है, ठीक है। कैसे? सबसे पहले इंस्टेंट शेयरिंग, लेकिन भाई मिस इन्फॉर्मेशन भी है। मिस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इमोशनल पोलराइजेशन भी है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर पैसेज में बोला है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन को इंपैक्ट करता है, इंस्टेंट शेयरिंग भी है, मिस इन्फॉर्मेशन भी है और इमोशनल पोलराइजेशन भी है। बच्चे अभी के लिए नोट्स मत बनाओ, अभी के लिए सिर्फ सुनो। शुभजीत आपको ना इसकी एनोटेटेड पीडीएफ मिलेगी, आप उससे पढ़ना, ठीक है। अभी के लिए जस्ट सिट स्ट्रेट, फोल्ड योर हैंड एंड लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, ओके। व्हाट इज मेन आइडिया? मेन आइडिया है सेंट्रल मैसेज जो आपके ऑथर आप तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये एक अम्ब्रेला टर्म की तरह है जिसके अंदर एग्जाम्पल्स, कॉन्ट्रास्ट, फैक्ट्स, रीजंस सब के सब इसमें आते हैं, राइट। यहां पर एक एग्जाम्पल है जो कहता है सोशल मीडिया ने ऑल्टर कर दिया है लोगों के कम्युनिकेशन को। ये इंस्टेंट शेयरिंग लेकर आता है ओपिनियंस, आइडियाज की, और मिस इन्फॉर्मेशन और इमोशनल पोलराइजेशन को भी फ्यूल करता है। अब यहां पर आपके पास एक लाइन, social media has significantly impacted modern communication both positively and negatively। अब यहां पर बोला गया है सोशल मीडिया इंपैक्ट करता है कम्युनिकेशन को पॉजिटिव तरीके से भी, नेगेटिव तरीके से भी। अब बच्चे ये आपका मेन आइडिया है, ये आपका सेंट्रल मैसेज है जो आपके ऑथर आप तक कम्युनिकेट करना चाहते थे पिछले पैसेज के अंदर। यहां पर सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है कि भाई इंस्टेंट शेयरिंग है। अब नेगेटिव में और क्या डिटेल है? मिस इन्फॉर्मेशन है, इमोशनल पोलराइजेशन है, राइट। इफ आई हैव टू सम इट अप, मतलब आप जब भी कोई भी पैसेज पढ़ो आप अपने आप से पूछो, अगर इस पूरे पैराग्राफ को मैं एक लाइन में समराइज कर दूं, एक लाइन में संक्षिप्त बता दूं, तो वो क्या होने वाला है? दैट इज योर मेन आइडिया। आई होप आई एम क्लियर सो फार। Is this clear, beta? Everybody, any questions here? Anything you guys have to ask?
मेन आइडिया इज क्लियर टू एवरीबडी? नकुल, इमोशनल पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन इज एक तरफ झुकाव हो जाना, जब लोग अपना बैलेंस्ड ओपिनियन छोड़कर रेज बेट में फंसकर एक जगह झुकाव कर लें, समझे? जैसे अभी इफ यू पीपल नो, सोशल मीडिया पर अभी मर्दानी 3 आ रही है, तो उनकी पीआर टीम ने इतने अच्छे तरीके से काम किया है कि पिछले 3 दिन में, 3 से 4 दिन में जो ये न्यूज है कि 800 लड़कियां दिल्ली से गायब हो गई हैं, 1500 लड़कियां दिल्ली से गायब हो गई हैं, 1000 लड़कियां दिल्ली से गायब हो गई हैं, ये इतनी ज्यादा फैल गई है। और सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू फूल पीपल। तो सभी के सभी लोगों ने एकदम से ये सोचना कि एकदम से ये न्यूज कैसे आई, इससे पहले कहाँ थी ये न्यूज, एकदम से कैसे हुआ ये सब, राइट? इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एंड आस्किंग दिस, पीपल हैव स्टार्टेड फॉलोइंग फॉर द न्यूज डायरेक्टली। जब भी आप कोई न्यूज सोशल मीडिया पर पढ़ते हो ना, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर, बेटा उस टाइम पर ना अपने आप से पूछो क्या एविडेंस है। समझ में आया? डू नॉट फॉल फॉर इट डायरेक्टली। ऑल राइट, क्लियर हुआ? सेंट्रल मैसेज एंड मेन आइडिया दोनों सेम चीज है बेटे। पलक, ये सही, there's truth in this, a lot of girls are going missing, बट अभी ये पिछले 1 हफ्ते से नहीं हो रहा है, बहुत पुराना मुद्दा है ये, बहुत पहले से ही देखा जा रहा है कि a lot of girls are being kidnapped and they are sold in other countries where they are working as sex slaves and they are pushed into prostitution. Okay? बेटा हुआ है साहिल ऐसा, बट ये नहीं है कि 1 हफ्ते में ही ज्यादा केसेस आए हैं, नहीं। समझ में आया? शॉर्ट मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है गलत इंफॉर्मेशन जो फैला दी जाती है। आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं ना बनिए, ठीक है? न्यूज देखिए, कुछ ऑथेंटिक न्यूज सोर्सेस को फॉलो करिए, न्यूज़पेपर रीड करिए। चलिए नेक्स्ट, नाउ सपोर्टिंग डिटेल। सपोर्टिंग डिटेल क्या है? वो सभी डिटेल्स जो आपके मेन आइडिया को सपोर्ट करती है सेटल करने में। ये इंक्लूड करता है आपके फैक्ट्स, आपकी रीजनिंग, आपका स्टैट्स और आपके एग्जाम्पल्स। देखो, डिफॉरेस्टेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज। एग्जाम्पल क्या कहता है? डिफॉरेस्टेशन से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बट जब उनको काट दिया जाता है, व्हेन दे आर कट डाउन, द गैस इज रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, वो गैस वापस एटमॉस्फेयर पर जाती है। उसके बाद द लॉस ऑफ ट्रीज, इससे सॉइल इरोजन भी होता है, इससे बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान हो रहा है, राइट? अब बेटा यहां पर मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया तो है कि डिफॉरेस्टेशन से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, राइट? लेकिन सपोर्टिंग डिटेल क्या होंगी कि भाई ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते थे, पेड़ों के काटने की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो फिर सॉइल इरोजन बढ़ेगा, बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है। तो ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, ये वो डिटेल्स है जो किसको हेल्प करती है? ये हेल्प करती है मेन आइडिया को एस्टैब्लिश करने में। I hope this is clear. Main idea is the central message and supporting details include examples, facts, explanations, stats जो आपके main idea को support करें। I hope this is clear. Supporting details often answer why and how. जो आपके एग्जाम में why और how के क्वेश्चंस होते हैं वो supporting detail से लिए जाते हैं। समझ में आया? कविता कि क्या 6-7 क्लास के बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हो बेटा? सॉइल इरोजन, सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर है जब वो हट जाए, रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्यों होता है? अब आपके ये पेड़ है, पेड़ की जड़ों ने ऊपरी वाली जो सॉइल है उसको टाइटली जकड़ा हुआ है, पेड़ हटेंगे, रूट्स हटेंगी, सॉइल लूज हो जाएगी, पानी का बहाव आएगा उसको बहा ले जाएगा, सिंपल। ये तो 6-7 क्लास के क्वेश्चंस है बेटे, समझ में आया? क्लियर हुआ?
क्या बोल रहे हो बेटा, क्या ठीक ठाक था? प्लीज राइट इट अगेन। नहीं बेटा, वो उसी के अंदर दी जाती है सपोर्टिंग डिटेल्स। टेलीग्राम चैनल इज इंग्लिश बाय निकिता PW। ठीक है? नहीं बच्चे, मैं गुस्सा नहीं हुई हूं, बट जब आप लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे तो फिर समझो। लिमीहा, प्लीज राइट योर क्वेश्चन अगेन। अच्छा, पोलराइजेशन का मतलब देखो, हमारे कितने पोल, इसको ना एक बहुत इजी तरीके से समझाती हूं। पोलराइजेशन, अभी भी आप लोग वहीं पर अटक गई हैं। पोलराइजेशन कितने पोल्स है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, 2 पोल्स हैं। जब आपका ओपिनियन बैलेंस ना होकर एक तरफ ज्यादा झुक जाए, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूं। अगर इस टाइम पर कोई भी न्यूज आ जाए रिलेटेड टू फॉर एग्जाम्पल SC ST टॉर्चर से रिलेटेड, ठीक है, बेशक वो न्यूज फेक हो, अभी हमें क्या लगेगा, वो न्यूज पढ़ के हमको गुस्सा आएगा और हम एकदम से एक साइड आ जाएंगे और हम उसकी सारी पॉजिटिविटी को खराब कर देंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। सो आवर ओपिनियंस हैव गॉट पोलराइज्ड, हैव मूव्ड टुवर्ड्स one end. We are not thinking about the rest of it. Okay. Tanisha, you can summarize the passage in a single sentence and that could be the main idea. Okay? समझ में आया सबको? बच्चे क्लियर है यहां तक? Any questions? Anything you people have to ask? No. Please focus over here. Let me go back to the slide where there was the word polarization. Focus here. Polarization is a term which means कि 2 एंड बन जाए, ठीक है? दिस इज द एंड पॉइंट, ठीक है? ऑपोजिट है ये दोनों, फार लेफ्ट फार राइट, एंड इन बिटवीन देयर इज लेस स्पेस फॉर मिडिल ग्राउंड। दिस इज पोलराइजेशन, जब आपके ओपिनियंस फार लेफ्ट फार राइट हो जाएं। आदर्श, क्या नहीं समझ में आ रहा है? मैंने अभी तक आप लोगों को सिर्फ 3 चीजें समझाई हैं, ठीक है? यहां पर आई हैव जस्ट इन taught you people 3 things. First is vocabulary in context. मैंने आपको क्या बोला है कि कोई भी पैसेज है उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है समझनी। When you read the passage, focus on some important things, जिनको मैंने डिवाइड किया है बेसिक डायमेंशंस में, एडवांस डायमेंशंस में। सबसे पहले आता है वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, दूसरे पर आता है मेन आइडिया, तीसरे पर आता है सपोर्टिंग डिटेल। अभी तो मैंने सिर्फ 3 चीजें समझाई हैं, ठीक है? यहां पर मैंने आपको क्या बोला है, देखिए,
वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट मतलब कोई भी वर्ड है जो आपका पैसेज में यूज हुआ है, उसका मीनिंग आप लोगों को डिकोड करना है। कैसे डिकोड करना है इसका मीनिंग? कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। प्लीज डू नॉट गो बाय द डिक्शनरी मीनिंग, go by the context. What is the overall meaning of the sentence? Because a word in English can have multiple meanings. You need to focus on the purpose of the word. कि जो ये word है ये क्या purpose के लिए यूज हुआ है, ठीक है। What is main idea? आपके पैसेज का सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल मैसेज क्या है? मेन आइडिया। जैसे हमारा था कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन को इंपैक्ट करता है पॉजिटिव तरीके से भी, नेगेटिव तरीके से भी। सपोर्टिंग डिटेल क्या है? वो सभी डिटेल जो मेन आइडिया को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करें। अब ये डिटेल क्या हो सकती हैं? फैक्ट्स हो सकती हैं, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कुछ स्टैट्स हो सकता है। मैंने इससे पहले आप लोगों को एक चीज समझाई थी, इफ यू ऑल रिमेंबर। एक चीज होती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? कुछ भी, जैसे Earth's temperature is rising day by day. This is a statement. What is an argument? When you have statement plus evidence. अगर मैं लिखूं यहां पर Earth's temperature is rising day by day. As per the NASA's reports, the overall temperature has risen by 2 degrees Fahrenheit. Now this is an argument because you have a statement and with the statement you have an evidence. And this evidence, my dear student, this evidence is called supporting detail. Now am I clear to everybody? Others, particularly you, because you said आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब आ रहा है समझ में या अब भी क्लियर नहीं है? Is it clear now? My dear Bacha Party, please stop talking amongst yourself. When I am explaining you something, you people are involved in trivial talks. And thereafter, you people are telling me that you have not understood a single word. How will that function? Tell me. If I keep on explaining the same thing 4 to 5 times, do you think we'll be able to complete the syllabus in the stipulated time? Do you think we'll have ample time for practice? Please try to be a little empathetic towards your teacher and understand us also. I have a lot of syllabus to cover. I want you to understand this. सपोर्टिंग डिटेल का मतलब है रेहान वो सभी डिटेल्स जो आपके मेन आइडिया को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करें, जैसे फैक्ट्स, एग्जाम्पल, स्टैटिस्टिक्स, डेटा। क्लियर? समझ में आया सबको? इज दिस क्लियर?
And what is confusing? Can you tell me? I have just said वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट में वर्ड को इंटरप्रेट करो पर्पस के साथ, मीनिंग कॉन्टेक्स्ट को लेकर, मेन आइडिया में सेंट्रल मैसेज समझो। सपोर्टिंग डिटेल्स के अंदर वो सभी डिटेल्स है जो आपके मेन आइडिया को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। स्टेटमेंट, अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग डे बाय डे। आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट के अंदर एविडेंस नहीं होता, आर्ग्यूमेंट में एविडेंस होता है, और ये एविडेंस ही सपोर्टिंग डिटेल है, समझे? नेक्स्ट, नाउ इन एनी, अगर ये आपका पैसेज है तो इस पैसेज के अंदर एक पैराग्राफ 1 होगा, एक पैराग्राफ 2 होगा, एक पैराग्राफ 3 होगा, और इन सभी पैसेजेस के अंदर बहुत सारे आइडियाज हैं, डिफरेंट आइडियाज आर देयर, ठीक है? अब अगर ये डिफरेंट आइडियाज आपके पैसेज में आपको ऐसे ही दे दिए जाएं तो सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रीमली डाइसेक्टेड लगेगी एंड इट वोंट मेक एनी सेंस। इसीलिए आपके पैसेज के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न फॉलो किया जाता है और कुछ शब्द यूज किए जाते हैं जो इन आइडियाज को एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं। तो ट्रांजिशन वर्ड आपके वो साइन पोस्ट है राइटिंग में जो रीडर्स को गाइड करते हैं ये समझने में कि आइडिया कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ द थॉट, ये समझने में अगर आपको पता चल गया है कि ये ट्रांजिशन वर्ड है तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमने आइडियाज को कनेक्ट किया है। अब हमारे पास कुछ एडिशन वर्ड्स होते हैं, कुछ कॉन्ट्रास्ट वर्ड होते हैं, कुछ कॉज इफेक्ट वर्ड होते हैं। अब हम वो वर्ड्स देखेंगे और आपको इन सभी वर्ड्स का रट्टा नहीं मारना है। जयेश, व्हाट इज कंफ्यूजिंग? प्लीज इलैबोरेट, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू प्रॉपरली। व्हाट इज कंफ्यूजिंग? Because about a single thing so far that is confusing. I've just explained 3 ideas. Vocabulary in context, where you need to understand the meaning of the word as per the context. Main idea, that is the central message. And then I have talked about supporting detail, जिसके अंदर facts, information है, stats है जो main idea को support करता है. What is confusing in these 3 things? Tell me. Please elaborate. What have you not understood? You need to understand that your paper is not bilingual. Your paper is in English. And it's been more than 15 days. I have told you people n number of times to start reading. If you people are not doing your homework, please do not come to my classes. Translation के लिए नहीं है ये classes. यहां पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगी. I am telling this again. ये ट्रांसलेशन की क्लास नहीं है, ये इंग्लिश की क्लास है। आई नीड यू पीपल ऑन सम लेवल ना, ताकि मैं आपको ऊपर लेकर जा सकूं। अगर तुम लोग चाहोगे मैं आपको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट ये सिखाऊं तो सॉरी। 40 लेक्चर में मैं आपको 12 साल की इंग्लिश नहीं करा सकती हूं। मैं आपको कंपटीशन के लिए तैयारी करा सकती हूं। अगर आप लोगों को ये सब सीखना है तो प्लीज समझो थोड़ा। I've given you homework. I've told you people to start reading. तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो आस्क का मतलब बताओ हिंदी में। आस्क का मतलब होता है पूछना। ASK इसका मतलब होता है सवाल पूछना। समझे? क्लियर हो गया है ये शब्द?
Now we'll talk about transition words or idea organization pattern. When we are reading a passage, there are going to be multiple ideas in it. It is very important for you to understand the flow of the ideas. अगर आपके पास एक पैसेज दिया हुआ है, मानकर चलिए ये पैसेज आपका ग्लोबल वार्मिंग पर है, पहली पैराग्राफ में आपको ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन दे दी है, दूसरे पैराग्राफ में कॉजेस, तीसरे में इफेक्ट और चौथे में क्या क्या सॉल्यूशन चाहिए कम्युनिटीज का वो दे दिया है, जहां पर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के बारे में डिस्कस किया है. तो देयर आर 4 to 5 आइडियाज जो पैसेज में दिए हैं. अगर उस पैसेज में ट्रांजिशन वर्ड्स नहीं होंगे तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी स्कैटर्ड. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन ट्रांजिशन वर्ड्स. ट्रांजिशन वर्ड साइन पोस्ट की तरह है जो आपको गाइड करने वाला है कि क्या फ्लो है थॉट्स का. अगर आपको वो फ्लो ऑफ थॉट एक बार समझ में आ गया है तो आपको पता चल जाएगा कि आप आइडियाज को कैसे कनेक्ट कर रही हैं. यहां पर आपके पास कुछ एडिशन वर्ड्स है, कुछ कॉन्ट्रास्ट वर्ड है, कुछ कॉज एंड इफेक्ट वर्ड है जो आपको रटने नहीं है, आपको बस एक बार रीड करने हैं. दैट्स इट. माय डियर बच्चा पार्टी, प्लीज 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 स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क, प्लीज स्टार्ट रीडिंग. I am telling you people again and again, you cannot improve your English if you are not reading. Your whole paper is reading comprehension based. If you haven't built a good hold over the language, you are going to mess all the 5 sections. English is that important for you people. This paper is not bilingual कि आप इंग्लिश को छोड़कर पूरा पेपर हिंदी में कर लेंगे. आपको इंग्लिश पर काम करना पड़ेगा बच्चा पार्टी. और यहाँ पर यू हैव योर फैकल्टीज हु आर गोइंग टू हेल्प यू एवरी टाइम यू फेस एन इशू. बट यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी, समझिए. मैं यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स की ट्रांसलेशन के लिए नहीं हूं. अगर आप लोगों को बेसिक चीजें समझ में नहीं आ रही है और मैं वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल करवाती रह जाऊंगी तो व्हेन आर वी गोइंग टू कवर द सिलेबस? आई वांट अस टू कवर द सिलेबस बिफोर May so that June, July, August 3 महीने we practice, practice and practice. अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो प्रैक्टिस कब करोगे? जिस बच्चे को अभी एक पैसेज रीड करके क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट लग रहे हैं ना, वो 10 मिनट मेरे को 5 मिनट में लेकर आने हैं और वो 5 मिनट में लेकर आऊंगी सिर्फ प्रैक्टिस से. आप लोग बेसिक्स ही नहीं समझ रहे हो. मैंने ओरिएंटेशन लेक्चर में कितने प्यार से आपको समझाया था, बेटे अपना होमवर्क करना, अपनी लैंग्वेज पर काम करना शुरू करो, अगर कुछ नहीं आता है तो पूछो. आई एम रिपीटिंग एक टॉपिक 5-5, 6-6 बार. मुझे नहीं लगता अगर 6-6 बार भी सुनने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए. तब तक तो क्लियर हो जानी चाहिए चीजें. अगर आप लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप लोग पढ़ने के साथ साथ गेम्स खेल रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, प्लीज कीप दैट ऑल असाइड. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. फोकस. मैं यहां पर कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं पढ़ा रही हूं. सिंपल सी चीजें हैं. इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन थोड़ी ना है भाई कि समझ में ही नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है. बेसिक चीज है. मेन आइडिया क्या होता है, सपोर्टिंग डिटेल क्या होती है, ये तो बहुत बेसिक चीज है. कम्युनिकेशन का पार्ट है. मैं तो आपको वही सिखा रही हूं. अगर आपको एक आधे घंटे की क्लास में 3 छोटे छोटे टॉपिक नहीं समझ, अगर आपको ये नहीं अभी तक समझ में आया कि एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, आपको समझना है उस शब्द का मतलब क्या है एज पर द कॉन्टेक्स्ट, तो आप कैसे इंग्लिश को करोगे? आप कैसे पेपर करोगे? आपको लगता है आप टॉप 100 में आ पाएंगे? आपको एनएलएस, नालसार या टियर 1 का कुछ मिल पाएगा इस हालात में? दिस इज अलार्मिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड. इट इज हाई टाइम. फेब आ गया है. 5 महीने सिलेबस कवरिंग में लग जाएंगे, 3 महीने की प्रैक्टिस, 8 महीने का सिंपल एक टेक्निक है इस पेपर की. आपको 7 से 8 महीने देने हैं ताकि आप बेस्ट कॉलेज तक जा सको. 3 महीने की प्रैक्टिस, रिगरस प्रैक्टिस चाहिए. अभी आप लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, बाद में कैसे करोगे आप लोग? खुद सोचो बेटे. मूविंग अहेड. अब ये कुछ एग्जाम्पल्स है ट्रांजिशन वर्ड्स के. सबसे पहले आते हैं एडिशन वर्ड जो इंफॉर्मेशन को जोड़ते हैं. ऑल्सो, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, another, lastly. Pollution affects human health.
मोर ओवर इट हार्म्स वाइल्ड लाइफ, एक्वेटिक लाइफ। यहां पर क्या दिया गया है? पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन क्या करता है? ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट डालता है, इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ और इक्वेटिक लाइफ पर भी। ठीक है, अब एक आइडिया ये है, एक आइडिया ये है। अब मुझे इस आइडिया के अंदर कुछ एडिशन करना है, तो यहां पर मैंने यूज कर दिया है शब्द मोर ओवर, जो एक एडिशन वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्रोनोलॉजी वर्ड। क्रोनोलॉजी क्या बताएगा हमें? टाइम, सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। यहां पर शब्द यूज किए जाते हैं टाइम वाले, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, लेटर, देन, फाइनली, प्रीवियसली। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अर्बनाइजेशन इंक्रीज रैपिडली। क्या बोला गया है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुई, यही बताया गया है आप लोगों को, बेसिक। ठीक है, तो यहां पर जो शब्द आफ्टर है, यही तो बता रहा है ना कि अर्बनाइजेशन कब शुरू हुई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। अगर ये आफ्टर शब्द नहीं होता तो क्या आपको पता चलता कब क्या हुआ है? क्या सीक्वेंस क्लियर हुआ था? नहीं। तो ये आपके क्रोनोलॉजी वर्ड्स का काम है। एडिशन वर्ड इंफॉर्मेशन को ऐड करेगा, क्रोनोलॉजी वर्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देगा। आई होप ये दोनों चीजें क्लियर है। अब मैं एक बार चैट डिसेबलिंग से हटा रही हूं, आप लोग जल्दी से बताओ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। चैट इज enabled, the slide is clear. Fazil, that is the same problem. I've repeated one topic more than 5 to 6 times. So I do not mind repeating it, but how will I cover my syllabus? I'm just worried about that particular thing. Clear? Any doubts? Now I'm again disabling the chat. Next. अब आते हैं कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स। कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स क्या है? बट, however, yet, unlike, on the other hand, despite, although। जैसे हमने बट पढ़ा है ना, सेम यहां पर भी हमारे पास ऐसे ही है। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या गिवन है? यहां पर हमारे पास कॉन्ट्रास्ट गिवन है। ठीक है, देखो, शी इज डिसिप्लिन्ड बट अ ब्रदर इज केयरलेस। वो तो डिसिप्लिन्ड है बट उसका भाई क्या है? उसका भाई है केयरलेस। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, कॉन्ट्रास्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट, सिमिलैरिटी वर्ड्स, सेम सेम, सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे, जस्ट एज। जस्ट एज कैफीन स्टिमुलेट्स द माइंड, एक्सरसाइज एनर्जाइजेस द बॉडी। क्या बोला है यहां पर? यहां पर कहना चाहते हैं कि जैसे कैफीन माइंड को स्टिमुलेट करता है, ऐसे एक्सरसाइज बॉडी को स्टिमुलेट करती है। अब ये एक रिलेशनशिप है, ये एक रिलेशनशिप है। इन दोनों को जिस वर्ड ने इक्वेट किया है वो है जस्ट एज। तो यहां से इस शब्द से हमें पता चला है कि ये दोनों सिमिलर फंक्शन है। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्शन देते हैं, जैसे यहां पर सिमिलैरिटी वर्ड्स सिमिलर बताते हैं, एक जैसा। आई होप ये क्लियर है, जल्दी से बताइए। दिस इज क्लियर टू एवरीबडी? एनी डाउट्स here? Any questions? Anything you have to ask? क्लियर बच्चा पार्टी? नेक्स्ट, अब आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है?
रीजन, रिजल्ट। एग्जाम्पल, आप लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं इसीलिए पुअर अंडरस्टैंडिंग है। एक और पुअर अंडरस्टैंडिंग है, पुअर परफॉर्मेंस है। पुअर परफॉर्मेंस है, पुअर मार्क्स है। ये है भाई, डिस्ट्रैक्टेड हो पुअर अंडरस्टैंडिंग, पुअर अंडरस्टैंडिंग पुअर परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस पुअर मार्क्स। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहां से समझ में आया? वर्ड्स जैसे therefore, hence, as a result, because, thus. The exam were postponed because of the flood. यहां क्या बताया जा रहा है? फ्लड है। फ्लड क्या? फ्लड रीजन है, मतलब कॉज है। इफेक्ट क्या हो गया? रिजल्ट क्या हो गया? एग्जाम पोस्टपोन्ड। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे रिलेटेबल, हाँ, इसलिए तो मैं रिलेटेबल एग्जांपल्स दे रही हूं ताकि तुम लोग समझो। हाँ भाई, पुअर मार्क्स, पुअर मार्क्स, नो NLU, ईयर वेस्टेड। अब देख लो भाई बच्चा पार्टी क्या करना है तुमको। डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, पुअर अंडरस्टैंडिंग, पुअर अंडरस्टैंडिंग, पुअर परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस, पुअर मार्क्स, नो NLU, ईयर वेस्टेड। अब जो बच्चे स्मार्ट हैं वो यहां से समझ जाएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए। क्लियर? मैडम रॉक्ड, बच्चा पार्टी शॉक्ड। नेक्स्ट देखो, अब नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। यहां पर आपके पास एक चीज है फैक्ट्स और एक है ओपिनियन। इन्फ्रेंस आपको कल कराया जाएगा, आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। फैक्ट्स क्या है? वो इंफॉर्मेशन जिसको आप सही गलत प्रूफ कर सकते हो। दिस इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ओपिनियन इज जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते, कांट बी प्रूव्ड, बिकॉज दिस इज सब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है? मैं तो चाहती हूं अबू बकर आप ईगो पर ले इसे, ताकि आप पढ़ाई करें, मेहनत करें। बच्चा पार्टी आप मुझे एक चीज बताओ, चलो, पढ़ाई करके किसका फायदा होगा? मेरा। अगर आप लोग पढ़ोगे मेरा फायदा होगा। We have more than 10 batches going on right now. I'm teaching a lot of students. ऐसा तो नहीं है कि अगर इस क्लास के बच्चों के मार्क्स अच्छे आएंगे तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी या मुझे कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है, नहीं। समझ रहे हो? मेरा क्या स्वार्थ है इसमें? बट आई वॉन्ट यू पीपल टू सक्सीड बिकॉज आई लव यू पीपल. I want to see you all clearing this exam so that you can get to your favorite NLUs. समझ रहे हो? I want my bacha party to do well because you are my students. I'm connected to you. I love you people. I want to see you getting your favorite colleges so that you don't mess up.
I want to meet all of you on the Nyay Divas, where we celebrate your success, your hard work. All right, please focus on your paper, my dear Bacha Party. This is for you people. Okay? देखो अब समझो फैक्ट क्या है. कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको आप वेरीफाई कर सको कि ये सही है या गलत. ठीक है. जैसे एसबीआई इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, इसको मैं सही गलत प्रूव कर सकती हूं. कैसे? एसेट होल्डिंग देखकर एसबीआई की. ओपिनियन क्या है? ये है आपका पर्सनल बिलीफ, आपका जजमेंट, जो आपके एक्सपीरियंस से शेप किया जाता है. एसबीआई इज इंडियाज बेस्ट बैंक. यहां पर आपको क्वालिटी वर्ड्स देखने को मिलेंगे. इसको आप सही गलत प्रूव नहीं कर सकते हो. देखो, क्या पता मैं एसबीआई बैंक में गई हूं और वहां पर उन्होंने मुझे अपना लंच का बहाना देखकर ना भगाकर मेरा काम जल्दी कर दिया हो, तो मुझे तो लगेगा एसबीआई बेस्ट बैंक है, मेरा काम जल्दी कर देता है. मेरा ओपिनियन है, ये मेरा बिलीफ है, ये पर्सनल बिलीफ. ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस से शेप्ड है. क्या मैं इसको सही गलत प्रूव कर सकती हूँ? नहीं. मेरा एक्सपीरियंस है, सब्जेक्टिव है नेचर में. बट अगर मैं ये बोलूं एसबीआई इंडिया का लार्जेस्ट या बिगेस्ट बैंक है, हाँ, ये मैं प्रूव कर सकती हूँ ये देखकर कि कितना लॉस हुआ है, क्या एसेट होल्डिंग है. समझे? क्लियर हुआ? समझे? क्लियर हुआ? सिमरन, फैक्ट होता है बेटे वो इंफॉर्मेशन जिसको आप सही या गलत प्रूव कर सकते हो. ठीक है. मैं जैसे बोलूं सन राइजेस इन द ईस्ट, ये मैं प्रूव कर सकती हूं, है ना. ओपिनियन क्या होगा? क्वालिटी वर्ड्स होंगे. यहां पर आपका आपकी जजमेंट, आपका एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होगा इसमें. दैट इज ओपिनियन. बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स. सुखेंद्र, ओपिनियन है बेटा मेरा बिलीफ सिस्टम से जो भी बोलूं मैं, अपने एक्सपीरियंस से जो भी बोलूं मैं. जैसे एसबीआई इंडिया का बेस्ट बैंक है, ये मेरा ओपिनियन है. मेरा ओपिनियन कैसे शेप हुआ? मेरे एक्सपीरियंसेस से. क्या आप इसको सही गलत प्रूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो फैक्ट है आपकी वो इंफॉर्मेशन जिसको आप सही गलत प्रूव कर सकते हैं. ओपिनियन है वो इंफॉर्मेशन जो सही गलत प्रूफ नहीं हो सकता है, और ये आपके एक्सपीरियंस से शेप्ड है. समझ में आई? एग्जैक्टली सिमरन. क्लियर हुआ? गरिमा, इंपॉर्टेंट एक ग्रामर टिप देती हूं सबको. यहां पर देखो, ग्रामर टिप ऑफ द डे. डू, डज, डिड, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई डोंट नो. ठीक है, या आई डिडंट नो, ना कि न्यू. ओके, समझ में आया? रिमेंबर दिस. चलो अब क्वेश्चंस करें. नाउ लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चंस एवरीबॉडी. सबसे पहले देखो पैसेज 1. क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? द वर्ड रिन्यूअल. जो ये वर्ड रिन्यूअल है सेकेंड पैराग्राफ में, इसका क्या मतलब है? रीड करो.
Done, everybody? Done? Very good, Garima. How was it? In the age of constant connectivity, silence has become an endangered experience. ये बोल रहे हैं constant connectivity where people are texting each other, talking to each other. यहाँ पर साइलेंस क्या बन गया है? एक एंडेंजर्ड एक्सपीरियंस जो बहुत कम लोगों के पास है. एवरी स्पेयर मोमेंट सीम्स टू डिमांड ऑक्यूपेशन. हर एक स्पेयर मोमेंट में कुछ ना कुछ काम है, जैसे स्क्रोलिंग थ्रू सोशल मीडिया, एक प्लेलिस्ट, एक ऑनलाइन कॉन्वर्जेशन. ठीक है. Yet silence is not the absence of sound. Silence sound का absence नहीं है. ये एक presence है. This is the presence of awareness. ये help करता है mind को settle करने में, observe करने में, बिना distraction के. Psychologists argue that moments of quiet reflection is ये सोचना कैसे क्या हो रहा है. मैं हमेशा बोलती हूँ, when you people sit and when you people have some time, please introspect. What are you doing? Are you working hard for your goal? Are you fulfilling your responsibilities properly? Is there anything that you haven't worked hard for? Spare is खाली. ठीक है. इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, इससे फोकस इंप्रूव होगा और आपका इमोशनल बैलेंस रिस्टोर होगा. However, the modern world often treats silence as awkward. Modern world silence को कैसे treat करता है? Awkward, even threatening, because ये हमें confront करता है हमारे thought से कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. ठीक है. Next, read this. पढ़िए. Historically, thinkers or artists, they have sought silence, withdrawal की तरह नहीं, but renewal की तरह. The poet finds rhythm in stillness, scientist clarity in solitude. If noise is the language of urgency, अगर noise language है urgency की, तो silence grammar है depth का. इन लर्निंग टू बी साइलेंट हम डिस्कवर करते हैं कैसे सुनना चाहिए बाकियों को और खुद को. ठीक है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू इंट्रोस्पेक्ट सो दैट वी कैन नो ourselves and our activities. Okay, please introspect so that you can understand how everything around is functioning. In order to get control of your life, of your actions, please introspect. Okay. Now, what is the central idea of the passage? Answer in the poll.
साइलेंस इज अ फॉर्म ऑफ सोशल आइसोलेशन। क्या साइलेंस कोई सोशल आइसोलेशन है? क्या पैसेज में ये बोला गया है? साइलेंस हेल्प करता है रिफ्लेक्शन में, क्रिएटिविटी में, अवेयरनेस में। हाँ भाई ये तो करता है। साइलेंस मस्ट बी अवॉइडेड टू स्टे प्रोडक्टिव, अवॉइडेड कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन एलिमिनेट। The modern world has become quieter than before. It hasn't. And that's the problem. The main idea is option number B, where they are saying कि silence, reflection, creativity, self-awareness में help करता है. Moving ahead. The renewal word is used in the second paragraph. What does it mean? Done, everybody? Done with this? Okay. Let's get back to the second paragraph once. यहाँ कहाँ है renewal? ये रहा. Historically, thinkers and artists have sought silence not as withdrawal but as renewal. ठीक है? तो अब आपको बताना है what is renewal? Is it repetition? No. Rejection? No. Restoration या restoration? Yes. Relaxation? Not as relaxation but restoration, where you are restoring your energy. Okay. So we are going to choose option number B as our answer. Bacha Party, in today's session, we have covered some important things, and that is, first, we dealt with vocabulary in context. Then main idea. Then supporting details. Transition words. कुछ स्लाइड्स आपने हटा दिए जयेश, वो इंपॉर्टेंट थे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्जेंसी? अर्जेंसी इज बिल्कुल इसी समय पर अर्जेंट हो कोई चीज. ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है बेटे कोई भी एक ऐसी चीज जिसको आप सही या गलत प्रूफ नहीं कर सकते. ठीक है, ये आपके एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है. दिस इज सब्जेक्टिव इन नेचर और इसमें आपको क्वालिटी वर्ड्स देखने को मिलेंगे. मैम जो फैक्ट्स पैसेज में दिए होते हैं उन्हें तो सच माना जाता है. एग्जैक्टली शिवांशी, उन्हें माना जाता है मैम, बट पैसेज के इन्फो को राइट या रॉन्ग कैसे बोल सकते हैं? पल्लवी, अगर उसको एविडेंस के साथ दिया गया है तो ठीक है, अदरवाइज नो बेटा. और ये राइट और रॉन्ग नहीं, यहाँ पर आपको देखना है जहाँ क्वालिटी वर्ड है वो ओपिनियन है, अदरवाइज फैक्ट है. मैम पैसेज में जो फैक्ट दिया हमें पता है कि वो रॉन्ग है बट सही कह रहा है, तो यू हैव टू गो एज पर द पैसेज, you have to go as per the author. This I have already told you people, do not stand at odds with the author, align with it. Do not bring your perspective while answering question. Your perspective isn't asked, they are asking you to decode it as per the passage's purpose. Okay, they are asking you to decode what the author is saying. Okay. Exactly भव्या, कर सकते हैं. ट्रांजिशन वर्ड्स पुष्पांजलि वो शब्द हैं जो आपको हेल्प करते हैं समझने में डिफरेंट आइडियाज को और उनके फ्लो को. यस एग्जैक्टली पार्थिवारी. क्या नहीं समझ में आया है बेटे? पीयूष, व्हाई नॉट अफ्रेड? क्योंकि पहला रिएक्शन अफ्रेड नहीं, कंफ्यूजन होगा. मैम सी क्यों नहीं हो सकता? अगर सी मार्क किया है तो वो गलत होगा. यस, explain in easy. How, Rudra? Which part?
पोलराइजेशन आई हैव ऑलरेडी डन। एग्जैक्टली सुखेंद्र, वो भी ठीक होता। क्या नहीं समझ में आया करण, दोबारा बताइए। सर्व निष्ठा, अभी हम टोन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जब करेंगे आप तब पूछना ये क्वेश्चन। जो मेन आइडिया को सपोर्ट करे उसे क्या कहते हैं? सपोर्टिंग डिटेल्स। जयेश मैम, सपोर्टिंग आइडिया जरूरी है कि पैसेज में हो, अलग हो, पर सपोर्ट कर रहे हो तो उन्हें सपोर्टिंग कंसिडर करेंगे। आपके अलावा पैसेज के अलावा क्या इंफॉर्मेशन दी जाएगी? स्टेटमेंट होता है बेटे सिर्फ एक लाइन। आर्ग्यूमेंट जब उसको आप लोग जस्टिफाई करें किसी फैक्ट से, स्टैट से, डिटेल से। एग्जैक्टली डीजे। Jigyasa, this is not going to happen. There's going to be a clear one idea in the passage. सपोर्टिंग डिटेल कारण वो सभी डिटेल्स हैं जो आपके मेन आइडिया को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर आते हैं आपके एग्जांपल्स पर्टिकुलरली। मैम, मालगुडी डेज पढ़ने के बाद कौन सी बुक पढ़ूं? बृष्टि, अब इसके बाद आप न्यूज़पेपर से स्टार्ट करो। आई हैव डन एल्केमिस्ट। वेरी गुड। Yes, Sahil, go ahead with it. Renan Martin is for grammar. How to make lecture notes? You don't have to, Divya. You get annotated PDF. How to study theory book? Which one, Shafai? Please guide me. My schedule is not consistent. I am a dropper. Arnav, you have a lot of time. Make a timetable and try to follow it. Okay? Stay consistent. Consistency is very important. रीडिंग स्पीड अभी पहले आप नवेद फोकस करिए कॉम्प्रिहेंशन पर, रीडिंग स्पीड बाद के लिए, ठीक है? चलिए, नाउ ऑन दिस नोट एवरीबडी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रैपिंग इट अप. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चा पार्टी. When you people are going to ask me such fractious things कि मैम आस्क क्या होता है, ये सब क्या होता है, बेटा ट्रांसलेशन की क्लास थोड़ी है. I need you people on some level now from where I can take you ahead. I'm preparing you for the competition. I want you to perform well. Please focus on that aspect. Okay? Please do your homework on time. And I'm really sorry if you felt bad. Okay? Now on this note, I'm looking forward to wrapping it up. एक बार leaderboard देख लेते हैं. देवी, स्मिता, शाश्वत, दीप्ति, तृप्ति, रुद्रांश, पलक, आयुष, श्याम, रैंडम, Mayank 2 out of 2. Very good.